بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اماں، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ابا آئے تو اسے بتا دینا، میں نے بال اٹھا کر باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر مت کرنا اور مسجد ضرور جانا مغرب کی نماز کے لیے، نہیں تو تیرا ابا بہت ناراض ہوگا، اماں نے پیچھے سے پکار کر کہا، جسے سنی انسنی کرتے ہوئے میں باہر چلا آیا۔ میرا رخ گاؤں کے باہر کی طرف تھا، جہاں ہم سب لڑکوں نے مل کر ایک چھوٹی سی جگہ کو جھاڑ جھنکار اور صاف کر کے اسے کرکٹ گراؤنڈ کی شکل دے دی تھی۔ کہنے کو تو یہ جگہ کرکٹ گراؤنڈ تھی، مگر یہاں دوسرے کھیل بھی کھیلے جاتے تھے، جن میں سے فٹ بال، ہاکی اور کبڈی شامل تھے۔ سب کھیلوں کے کھلاڑیوں نے مختلف پاریاں مقرر کر رکھی تھی۔ آج کرکٹ کھیلنے والوں کی باری تھی۔ گاؤں میں کرکٹ کے شوقین اور کھلاڑیوں کی کمی نہ تھی، اس لیے جب میں وہاں پہنچا تو کئی لوگ جمع تھے جو کھیلنے آئے تھے۔ میرے دوست بھی وہاں موجود تھے، میں ان کی طرف چلا آیا۔ مجھے آتا دیکھ کر میرا ایک دوست علی بولا، لو بھائی، آ گیا اپنا شاہد آفریدی۔ بھائی، تجھے کس نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا؟ نہیں یار، بس اماں کی نصیحتوں سے جان چھڑاتے چھڑاتے دیر ہو گئی، میں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سنبھال لی۔ کھیل شروع ہوا تو کھیلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا اور مغرب کی اذان ہو گئی۔ اماں نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے ضرور جاؤں، مگر میں کھیل میں مگن رہا۔ آخر جب مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا اور کچھ بھی نظر نہ آنے لگا تو دوسروں کی طرح میں نے بھی گھر کا رخ کیا۔ اپنی ہی دھن میں مگن میں گھر میں داخل ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ابا جان کی دھاڑ نے ساری چونچالی ہوا کر دی۔ وہ مجھ پر بری طرح برس پڑے تھے۔ شرم نہیں آتی رضوان میاں؟ امام مسجد کے بیٹے ہو کر نماز پڑھنے نہیں آتے؟ یہ گیند بلہ قبر میں لے کر جاؤ گے کیا؟ پتا ہے آج کتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے مجھے۔ سب ہی سوال کر رہے تھے کہ رضوان اختر کہاں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں چپ چاپ سر جھکائے ابا کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بھڑاس نکال چکے تو مجھے دفع ہونے کا حکم دے دیا۔ میں بجھے ہوئے دل سے وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ابا جان کا ہمیشہ سے میرے ساتھ یہی سلوک رہا تھا۔ میرے ابا ایک مسجد میں پیش امام تھے۔ میرے علاوہ ان کی اولاد میں میری 2 بہنیں بھی تھیں۔ گھر میں میرے اور میری دونوں بہنوں کے علاوہ ابا، اماں، دادی اماں اور چھوٹی پھپھو بھی شامل تھیں۔ چھوٹی پھپھو کے شوہر جو ابا کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہی رہتی تھی۔ اس طرح ماشاءاللہ سے ہمارا کنبہ اچھا خاصا بڑا تھا اور ہم سب کا بوجھ صرف ابا کے ناتواں کندھوں پر تھا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا آخرکار اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داریوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ مجھے کالج میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کے نزدیک کالج کی پڑھائی نری فضول خرچی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسجد کا انتظام سنبھال لوں تاکہ ان کے بعد مجھے پیش امام کی جگہ مل جائے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا تھا اور اب کرکٹ پر اپنی ساری توجہ مبذول کرتی تھی۔ ابھی بھی ڈانٹ کھا کر میں منہ پھلا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تھا۔ ذرا دیر بعد اماں جان نے کمرے میں جھانکا۔ اماں نے کہا، رضوان، کھانا کھا لے بیٹا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اماں، آپ ابا کو ہی کھلا دیں، میں نے روٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کھا چکے ہیں، تو بھی اٹھ کے کھا لے، اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ کہا نا مجھے نہیں کھانا، نہیں ہے مجھے بھوک، میں نے بیزاری سے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ اماں جان خاموشی سے باہر چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد جب اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں انہوں نے میرے لیے کھانا اٹھایا ہوا تھا۔ بیٹے اٹھ جا، رزق کے ساتھ ناراضگی اچھی نہیں ہوتی، اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اماں جان نے مجھے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا۔ ناچار میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں جان نے مجھے کھانا کھلائے بغیر نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے کھانے لگا، لیکن میرے دل میں ابا جان کے لیے ابھی تک غصہ بھرا ہوا تھا۔ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ سے 20 سال کے ہو چکے ہو، تیری بہن کی منگنی ہو چکی ہے اور اب اس کے سسرال والے شادی کی جلدی کر رہے ہیں۔ تیرے ابا اب بوڑھے ہو چکے ہیں بیٹا، اب تمہیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اپنے ابا کی بات مانو، ان کے ساتھ مسجد چلے جایا کرو، وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہا کرتے ہیں نا۔ اماں جان بھی دوسری ماؤں کی طرح ہی تھی، شوہر کے سامنے بیٹے کی وکالت کرتی تھی اور بیٹے کے سامنے شوہر کی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔
अम्मा कह सुनकर थक गईं तो बर्तन उठाकर चली गईं और मैं चारपाई पर लेट गया। हमारे घर के हालात बचपन से ही अजीब से थे। अब्बा जान मस्जिद की पेश इमामी के अलावा और कोई काम नहीं करते थे। इसके अवज गांव वाले उन्हें हर महीना 10,000 रुपया दे दिया करते थे। सारा महीना हमें उन्हीं में खींच तान कर गुजारा करना पड़ता था। अब्बा जान, अम्मा जान और बाकी सब घर वाले तो इस जिंदगी से किसी हद तक मुतमईन भी थे, मगर मैं शदीद नाखुश था। अब्बा जान का और कोई जरिया मुआश न था। वो दुनिया के चाल चलन से बिल्कुल अनजान और दूर रहकर जिंदगी गुजारते थे, मगर मेरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं जब अपने दोस्तों को देखता था जिनके हालात हमसे ज्यादा अच्छे थे, तो मेरे दिल में भी हसरतों का तूफान करवटें लिया करता। जब वो खुले दिल से पैसे खर्च करते थे तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेती कि काश मेरे पास भी इतने पैसे हों, मगर ये ख्वाहिश महज एक दीवाने का ख्वाब ही होती जो शर्मिंदा ताबिर नहीं बन सकता था। मेरे दादा जान भी इसी गांव की मस्जिद में पेश इमाम थे। उनके बाद अब्बा बने और अब शायद मेरी बारी थी। गांव वालों के नजदीक हम गोया कोई खल्लाई मखलूक थे जिनसे किसी खता का सरजद होना गुनाह असीम था। शायद यही वजह थी कि बचपन से ही हम सब बहन भाई एक इम्तियाजी सलूक का शिकार बने रहे थे। हमें बचपन से ही ये चीज जहन नशीन कराई गई थी कि हम आम बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, क्योंकि हम पेश इमाम की औलाद थे और पेश इमाम की औलाद को बेहद तमीजदार और मुअद्दब होना चाहिए। इस रवैये से रो गर्दानी की तो किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर मैंने जरूर बगावत कर दी थी और इसी बात पर अब्बा जान भी मुझसे खार खाए रहते थे। मुझे प्यास लगने लगी तो मैंने अपनी सोचों को ब्रेक लगा दिया और उठकर पानी पीने के लिए घड़े की तरफ बढ़ गया। मैंने सामने से गुजरते हुए देखा दादी जान के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई कराह रही थी। रिजवान पुत्र, खाना खा लिया तूने? मुझे देखकर दादी जान ने पूछा। जी दादी, खा लिया खाना, मैंने बेजारी से कहा। पता नहीं क्यों आज मिजाज बड़ा अजीब सा बना हुआ था। दादी जान ने मेरे लहजे पर गौर किए बगैर मुझसे कहा, बेटा पानी पीकर जरा मेरी टांगे दबा देना। आज दूसरे गांव गई थी, मेरी टांगे थकन से बहुत दुख रही हैं, जरा दबा दे। जी आता हूँ, मैंने जान छुड़ाते हुए कहा। पानी पीकर वापस आया तो लाइट जा चुकी थी। मैंने सोचा अंधेरे में कौन सा दादी जान मुझे देख रही है, कौन घंटे तक उनकी टांगे दबाए। मैंने लापरवाही से सोचते हुए अपने कमरे का रुख किया और आकर लेट गया। काफी देर तक यूं ही पड़ा सोता रहा। फिर मुझे कुछ शर्मिंदगी सी होने लगी। दादी जान आमतौर पर मुझसे ऐसे किसी काम का नहीं कहती थी। आज अगर कहा भी तो मैं जान छुड़ाकर भाग आया था। हालांकि 15-20 मिनट के लिए अगर मैं उनकी टांगे दबा लेता तो इससे मेरी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। मैं चुपके से रजाई से निकला और दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। इंतहाई दबे कदमों से मैं दादी जान के कमरे तक पहुंचा। लाइट तो अभी तक नहीं आई थी, मगर उनके कमरे में रोशनी हो रही थी। मुझे ये रोशनी बड़ी अजीब सी लगी। बड़ी सफेद सफेद ठंडी ठंडी सी रोशनी थी। खैर, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। धीरे से दरवाजा खोला तो ठंडक भरी खुशबूदार हवा का झोंका बाहर आया, जिसने मेरा एतराम मुअत्तर कर दिया। मैं हैरान तो बहुत हुआ, आखिर इस तरह की ये खुशबू कहाँ से आई है, लेकिन कुछ समझ न आया, क्योंकि अगले मंजर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। दादी जान चारपाई पर सोई हुई थी और उनके करीब 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई थीं। सुर्ख चूड़े में मलबूस वो बच्चियां दादी जान की टांगे दबा रही थीं। उनकी रंगत दूध जैसी सफेद थी, बाल लंबे और घुंघरियाले से थे, बड़ी बड़ी गोल आंखें और छोटा सा कद, बिल्कुल बोनो जैसा। मैं दम बखुद होकर देखने लगा। आखिर ये कौन थी, कहाँ से आई थी? क्योंकि इतनी छोटी और इस तरह की शक्ल सूरत की बच्चियां हमारे घर तो दूर की बात गांव भर में ना थीं। फिर उनमें से एक की मुझसे निगाहें चार हुईं। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में पुतलियों की जगह 2 नन्हे नन्हे अंगारे चमक रहे हों। शदीद दर्द के बावजूद मुझे पसीने आने लगे। मैं फौरन ही पलटा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और बिस्तर में घुसकर चुपके से लेट गया। मेरा दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था। ये वाकया इन अजीबोगरीब वाकयात में से एक था जो मेरे साथ बचपन से पेश आते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों मैं काफी छोटा था, शायद 4th जमात में पढ़ता था।
हमारा ये घर मेरे परदादा ने बनवाया था। उन्हीं के हाथों से लगाया गया एक बेरी का दरख्त हमारे घर में अभी तक मौजूद था। ये दरख्त बहुत अच्छा फल देने वाला साबित हुआ। मैं अपने बचपन में से ही बहुत शरारती और जिद्दी तबीयत का मालिक था। उस दिन मुझे बेरी के दरख्त पर चढ़ने का शौक चुराया। अम्मा जान मुझे बेरी पर चढ़ने से रोकती रहीं। बेटा, बेरी के दरख्त पर मत चढ़ो, कांटेदार दरख्त है, गिर गए तो चोट लग जाएगी। मैं सुनी अनसुनी करते हुए वहीं बैठा रहा और जो ही अम्मा जान इधर उधर हुई, फट से दरख्त पर चढ़ गया। मुझे चढ़ने में कुछ मुश्किल तो पेश आई थी, मगर फिर भी किसी न किसी तरह चोटी पर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर मैंने पके हुए बेर तोड़े और मजे ले लेकर खाने लगा। मैं बेर खाने में मगन था कि अचानक ही चौंका। मुझे अपने सर पर जोर जोर की खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। मैंने खौफजदा नजरों से ऊपर देखा तो ये देखकर मेरे हवास खता होने लगे कि मेरे सर के ऊपर जहां दरख्त की सबसे ऊंची टहनी थी, वहां शहद की बड़ी मक्खियों का एक छत्ता था, जहां पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। मैं कांप गया। ये तो मुझे अच्छी तरह इल्म था कि ये बड़ी खौफनाक मक्खियां होती थीं और इनके डसे हुए को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता था। बस उसी लम्हे मेरा दिमाग घूमा, मुझ पर शदीद खौफतारी हो गया। तभी मेरा हाथ उजलत में टहनी से छूटा। मैं नीचे उतरने की कोशिश करने लगा और इसी तेजी का मुजाहिरा करने की वजह से मेरा हाथ टहनी से छूट गया और मैं तेजी से नीचे गिरने लगा। मेरे जिस्म में कई कांटे चुभ गए थे। लेकिन फिर बड़ी अजीब बात हुई। मैं अब जमीन से चंद फुट ही दूर था और मुझे यकीन था कि अगले चंद पल में मैं अपनी कई हड्डियां तुड़वा बैठूंगा। उसी लम्हे जैसे किसी ने अचानक ही मुझे गोद में भर लिया। मैंने हैरत से आंखें खोल दी, मगर कोई भी नजर न आया था। मैं गिरने से बच गया था और हवा में यूं मौलिक हो गया गोया किसी ने मुझे गोद में उठाया हुआ हो। फिर मेरे नादीदा मोहसिन ने मुझे आहिस्ता से नीचे उतार दिया। मैं थोड़ी देर तक तो हैरान सा वहां खड़ा रहा, फिर चुपके से वहां से खिसक लिया। मैंने इस बात का तस्करा घर में किसी से नहीं किया था। इसी तरह जब मैंने 8वीं जमात में दाखिला लिया तो स्कूल में आने वाले दूसरे बच्चों को आधी छुट्टी के वक्त अपने साथ लाए हुए पैसों से खाने पीने की अशिया खरीदते हुए देखकर मेरा भी मन ललचा जाता था। मगर मेरे पास कभी कभार ही 10 या 5 रुपए के नोट होते थे। अक्सर मैं सूखा मुंह ही लिए बैठा रहता था। उस दिन भी मुझे शदीद भूख लगी थी। मैं हसरत भरी नजरों से कैंटीन की तरफ देख रहा था। समोसों और बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही थी, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी जो एक आध समोसा ही ले सकता। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बहुत दिल बर्दाश्ता होकर स्कूल से अपना बस्ता उठाया और एक तरफ लगे हुए कूलर से पानी पीकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी स्कूल के लॉन से ही गुजर रहा था कि अचानक ही मुझे एक छोटा सा कंकर आकर लगा। मैंने भिन्नाकर इधर देखा जहां से कंकर फेंका गया था। वहां कोई भी नजर नहीं आया था, मगर वहां पर 10 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ था। ये कड़क नया और चमकदार नोट था। मैंने सोचा कोई भूल गया होगा या किसी का गिर गया होगा। मैंने नोट उठा लिया। अगले दिन भी उसी वक्त उसी जगह से मुझे दूसरा नोट मिला। इस तरह मैं जब तक स्कूल में पढ़ता रहा मुझे रोज ही 10 रुपए के नोट मिलते रहते थे। स्कूल के साथ ही एक पुराना मंदिर भी था जो खस्ता हाल और टूटा फूटा हुआ था। उसका बड़ा सा फाटक हमेशा बंद रहता था। मुझे वहां से भी अक्सर एक पत्थर के नीचे से 5 या 10 रुपए का नोट मिला करता था। मैं 2 साल तक उस स्कूल में पढ़ता रहा और मुझे ये नोट मिलते रहे। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, मगर फिर मेरी बड़ी बहन शफक शदीद बीमार हो गई थी। अब्बा जान के पास पैसे नहीं थे और शफक के बचने का कोई आसरा नहीं था। मैंने काफी रुपए पसंदाज कर रखे थे। अपनी बहन को मुश्किल में देखकर मैंने वो पैसे अम्मा जान के हवाले कर दिए। वो मेरे पास इतने सारे पैसे देखकर चौंक गई थी। रिजवान, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मा जान ने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। पहले तो वो मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही थी, मगर फिर जब उन्होंने अप्पा जान को इस बारे में बताया तो उन्होंने जाने क्या कहा कि वो चुप हो गई। उसके बाद और तो कुछ ना हुआ, बस मुझे कभी वहां पर दोबारा पैसे नहीं मिल पाए, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। खैर, इसी तरह बचपन की यादें दोहराते हुए मुझे कब नींद ने आ लिया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो रात वाला वाकया याद आ गया, जिसे सोचकर मैंने दादी जान से पूछा, दादी जान, रात आपके कमरे में कौन लड़कियां थीं?
दादी जान ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, तो तुमने वो लड़कियां देख ली थी? मैंने कहा, जी हाँ, देख तो ली थी, लेकिन दादी जान वो थी कौन? मैंने उन्हें पहली बार यहाँ पर देखा था। मेरी बात सुनकर दादी जान मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, वो मेरी मुरीदनियां थीं। मैं हक्का बक्का सा रह गया। भला दादी जान की मुरीदनियां कहाँ से पैदा हो गई थीं? इससे पहले कि मैं मजीद कुछ पूछता, उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी, बेटा, जिन चीजों के बारे में इल्म ना हो उनमें बिला वजह की सोच विचार अच्छी चीज नहीं होती। उनकी ये बात सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। शायद मैं उनके ऐसे कहने के बावजूद मजीद कुछ और भी पूछता, मगर उस वक्त अप्पा जान आ गए, इसलिए मैं खामोश रह गया। अप्पा जान ने एक कड़ी नजर मुझ पर डाली और खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगे। मैं चाय खत्म करके उठने लगा तो अप्पा जान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? मैंने अप्पा को कहा, अप्पा अभी आता हूँ। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैं चलता रहा और उस मंदिर तक पहुंच गया। मुझे एक आवाज आई। मैंने चौंक कर आवाज की तरफ देखा। वहां एक नंग धड़ंग साधु नुमा इंसान बैठा नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मैंने उससे हैरानी से पूछा। अरे बालक, नजर नहीं आता है क्या? हम तो एक निकम्मे से बंदे हैं पालनहार के। तुमको इधर दुखी बैठे देखा तो सोचा जरा बातचीत कर लें। पता तो करें कि ऐसा कौन सा बोझ है मन पर जो यूं मुंह फुलाए बैठे हो। साधु ने गहरी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने झिझक कर कहा। कोई तो परेशानी है बच्चे, अब हमसे भी छुपाएगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है मुझे बड़े मियाँ, अपनी आंखों का इलाज कराओ, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने उसे नागवारी से देखकर कहा तो उसके चेहरे पर एक खबीसाना मुस्कुराहट उभरी। मियाँ साहब, हम तो वही देख रहे हैं जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, और तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मन को कोई दीमक लगी हुई है। कौन सी दीमक? मैंने हड़बड़ा कर कहा। बालक, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में बहुत से घाव हैं। तुम नहीं बताना चाहते हो तो हम तुमको मजबूर नहीं करेंगे। हाँ, अगर बताना चाहो तो तुम्हारी जो मदद कर सके वो जरूर करेंगे। साधु ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा था कि मेरा दिल पिघल गया। मैं चंद लम्हे तक चुप खड़ा कुछ सोचता रहा और फिर मैंने अटकते अटकते अपनी ज़बू हाल जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरी कहानी सुनकर वो साधु कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर कहने लगा, सुनो लड़के, अगर तुम चाहते हो कि तुम अमीर बन जाओ, तुम्हारे हालात बदल जाए, तो तुम मेरे पास झोपड़ी में मिलने आ जाना। साधु उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं आऊंगा। मैंने साधु से मुसाफा किया और वहां से वापस चल पड़ा। घर पहुंचकर मैं अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में सोचता रहा कि मैं भी अमीर बन जाऊंगा अब उस साधु की बदौलत। यही सब सोचते हुए मैं कब सोया पता ही नहीं चला। मेरी आंख अम्मी के जगाने पर खुली, जो मुझे सख्त डांट रही थी कि मैंने आज फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जिसकी वजह से वो सख्त नाराज हो गई थी। मैं शर्मिंदा सा उठ गया। आज मैं जानबूझकर मस्जिद भी नहीं गया था, क्योंकि मेरा दिल अब हर चीज से उचाट हो चुका था। मैं अब बस जल्द से जल्द साधु से मिलना चाहता था, जिसने मुझे एक बेहतर जिंदगी के बारे में बताना था। उस दिन अब्बा जान खिलाफ तवक्को बिल्कुल खामोश खामोश थे। मैं साधु की बताई हुई बातों के बारे में सोचने लगा। उसने मुझे अगले दिन दोपहर के वक्त उसी जगह यानी नहर के किनारे बुलाया था। मैं बेचैनी से मुकर्ररा वक्त होने का इंतजार कर रहा था। मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ इस बात से यकसे अनजान था कि अब्बा जान आज बहुत मुस्तरब हैं। उन्हें किसी पल भी चैनो करार नहीं था। वो बार बार बेचैनी से टहलने लगते थे। उनके कदम बार बार मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर फिर जैसे कोई एकदम से उन्हें रोक देता था। फिर जब हिजान से ज्यादा शिद्दत इख्तियार की तो घर से बाहर निकल गए। उनके कदम मस्जिद की तरफ उठ रहे थे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने वज़ू खाने से वज़ू किया और अंदर चले गए। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। वो मस्जिद के सतून से टेक लगाए आंखें बंद करके बैठे थे। अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। अब्बा जान ने चौंक कर आंखें खोली और कहा, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे तशरीफ ले आए? अब उनके सामने एक सफेद साया नमूदार हो रहा था। इतला देने आए हैं इमाम साहब, इस सफेद साये ने कहा। कैसी इतला? अब्बा जान ने इस्तराब के आलम में पहलू बदलते हुए पूछा। आपका बरखुरदार गलत रास्तों का राही बनने वाला है, इस सफेद साये ने कहा।
जो अब एक मुकम्मल इंसान में ढल चुका था। अब्बा जान के कंधे लटकने लगे। उनके चेहरे की झुर्रियां कुछ और गहरी हो गई थी। उन्होंने गमज़दा आवाज में कहा, क्या तुम उसे रोक सकते हो? उस पुरस्कार अजनबी ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं जनाब, पीरो मुर्शिद ने फरमाया था कि अगर कोई हमारे खानदान का फर्द लालच में मुब्तला हो जाए तो उसकी मदद करना मना है। हम उस हुक्म से मजबूर हैं। हाँ, अलबत्ता समझाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। उस शख्स ने कहा, ठीक है, आप अपनी सी कोशिश करके देखें, खुदा करे कि वो बददिमाग समझ जाए। अब्बा जान ने कहा तो वो बुजुर्ग खामोशी से सर हिलाते हुए गायब हो गए। अब्बा जान ने वापस सतून से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। जब दोपहर हो चुकी तो मैं खामोशी से घर से निकला। उस वक्त हर जगह खामोशी छाई हुई थी। मैं तेज तेज कदमों से चलने लगा। गली से निकलकर मैं कच्ची सड़क पर पहुंचा तो ठटक कर रुक गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ी जिसामत वाला कुत्ता खड़ा था। उसकी खौफनाक ज़बान जो गज भर लंबी थी वो बाहर लटक रही थी और वो कच्चे रास्ते के ऐन दरमियान में पंजों के बल बैठा हुआ था। मैं उसे डराने की कोशिश करने लगा, मगर उस पर रत्ती भर भी असर ना हुआ। वो जूं का तू बैठा ही रहा। तंग आकर मैं रास्ते से उतरा और खेतों के दरमियान से गुजरकर जाने लगा। मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने कुत्ते को एक बार फिर दौड़कर सामने खड़ा होते देखा। अब वो मेरे ऐन सामने खड़ा बड़ी खौफनाक आवाज में हुर्रा रहा था। मैं परेशान हो गया था। साधु का दिया हुआ वक्त गुजरता जा रहा था और ये कुत्ता था कि सामने से हट ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने मेरा रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया हो। मैं जिस तरफ से भी हटकर गुजरने की कोशिश करने लगता, कुत्ता सीधा उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता और गुर्राने या भौंकने लगता। मैं इस सूरत हाल से परेशान यहाँ से गुजरने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा कर उछल पड़ा। पलट कर देखा तो अपने पीछे एक सफेद रेश बुजुर्गवार खड़े नजर आए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मियाँ साहबजादे, बेकार की कोशिश मत करो, ये कुत्ता तुम्हें यहाँ से गुजरने नहीं देगा। मैंने उनकी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या मतलब है आपका बाबा जी? वो मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोले, मियाँ, इस कुत्ते को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए ही खड़ा किया गया है। बेहतर होगा कि जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज तो है नहीं। देखो बाबा जी, मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है, अब आप और ज्यादा मत घुमाए, मुझे खामोशी से यहाँ से जाने दें। मैंने भिन्ना कर कहा। मेरी बात सुनकर बाबा जी दोबारा मुस्कुराए। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे लड़के, तुम्हें ठोकर लगेगी तभी तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। ठीक है, जैसे चाहो वैसे करो, नहीं रोकते हम तुम्हें। ये कहकर बाबा जी जाने लगे। उनकी तरफ से सुकून का सांस लेकर मैं कुत्ते की तरफ मुतवज्जे हुआ, लेकिन ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि वहाँ कुत्ता तो दूर की बात, उसका नामो निशान भी नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कहाँ तो वो कुत्ता मुझे गुजरने ही नहीं दे रहा था और कहाँ वो सेकंडों में गायब हो गया था। खैर, मैं खरामा खरामा चलता हुआ नहर के किनारे पहुंच गया था। साधु वहां मेरा मुंतजिर था। मुझे आते देखकर वो मुस्कुरा कर बोला, आ गया बालिक, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ मैं आ तो गया, मगर रास्ते में एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया था। मैंने ये कहते हुए उसे सारा किस्सा सुनाया। वो ये सब सुनकर शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। बालिक, तेरा बाप तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाहता कि तुझे भी कोई कामयाबी मिले। साधु की बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब? मेरा बाप कहाँ से आ गया बीच में, और वो मुझे क्यों रोकेगा? उसे तो पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने हैरत से पूछा। सब पता है उसे बालिक, शक्तियां हैं उसके कब्जे में, लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो बचपन से ही दबा कर रखा है उसने। चाहता तो तुम लोग भी आज धन दौलत के मालिक होते, पर वो ना तो खुद अपनी शक्तियों से फायदा उठाना चाहता है, ना तुम्हें उठाने देगा। साधु की ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ये तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा था कि हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब वाकयात होते रहते थे, मगर ये भी सच था कि मेरे या बहनों के कुछ पूछने पर इन वाकयात की कोई न कोई अकली दलील भी पेश कर ली जाती थी, या फिर इस बात को हमारा वहम करार देकर बात रफा दफा कर ली जाती। आज साधु से शक्तियों का जिक्र सुनकर वो सब वाकयात नजरों के सामने घूमने लगे। मैं साधु के सामने दो जानों होकर बैठ गया और एक एक करके वो सब बातें उसे सुनाने लगा।
वो अपने चेहरे पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट सजाए सब कुछ सुनता रहा। मैं चुप हुआ तो उसने कहा, पालिक तुम चिंता ना करो, मेरी बातों को दिल से लगाकर सुनोगे, अमल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा तो चंद लम्हे तक चुप बैठे रहने के बाद वो मुझे धीमी आवाज में कुछ बताने लगा। मैं ये सब सुनकर गड़बड़ा गया था। लेकिन मैंने ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं कांप गया था। देखो बच्चा, करना तो तुम्हें पड़ेगा, साधु बोला। अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तुमको जबरदस्ती मजबूर नहीं करते हैं, मगर इसमें नुकसान सरासर तुम्हारा अपना होगा। ये सुनने के बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन मैंने कहा। लेकिन क्या? साधु ने पूछा। अगर मैं नहीं कर पाया तो? मैंने पूछा। तो दोबारा इधर मत नजर आना, क्योंकि हम बेकार लोगों को पसंद नहीं करते, उसने बिगड़े हुए लहजे में कहा। तो मैं वहां से वापस चला आया था। घर वापस आते हुए मेरे कदम लरस रहे थे। मैं किसी से भी बात किए बगैर अपने कमरे में घुस गया। अगली रात जब सब सो गए तो मैं खामोशी से घर से निकला। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। आज मुझे एक पुरानी कब्र के पास बैठकर एक अमल करना था। साधु ने मुझे अल्फाज बताए थे जिन्हें एक पुरानी कब्र के पास बैठकर पढ़ना था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके घर से बाहर निकल आया। अच्छी तरह से चादर की बक्कल मारकर मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वहां से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में उसके दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन सामने नजर डालते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि मेरे सामने वही सफेद रेश बूढ़ा बाबा खड़ा था। लड़के, गलत रास्ते पर चल पड़े हो। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर तुम्हें अपने आप को और अपने ईमान को बर्बाद करने के सिवा। चले जाओ, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, उस बूढ़े बाबा ने कहा। मैं कांपते हुए उसे देखने लगा। तुम कौन हो? बार बार मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो जाते हो? मैंने उससे पूछा। उस बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारे घर का बरसों पुराना वफादार हूँ बेटे। बरसों से तुम लोगों की हिफाजत कर रहा हूँ। उस आदमी की बातों में मत आओ, वो कुछ नहीं देने वाला तुम्हें। तुमसे तुम्हारे ईमान की दौलत भी छीन लेगा। वो सिर्फ अपने गंदे काम करवाना चाहता है तुमसे। देखो बड़े मियाँ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अच्छा होगा कि मेरे रास्ते में ना आओ। मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए मुझे बिला वजह रोकने की कोशिश भी मत करो, मैंने गुस्से से धाड़ कर कहा। बूढ़ा बाबा कुछ देर तक अफसोस भरी नजरों से मुझे देखता रहा, फिर एक तरफ चल दिया। मैंने एक पुरानी कब्र की जगह मुंतखब की और उसके पास बैठ गया। मैंने साधु के बताए गए तरीके के मुताबिक दायरा बना लिया था, मगर जूं ही मैं वो अल्फाज पढ़ने बैठा, एकदम से मुझे झटका सा लगा। वो अल्फाज या मंत्र जो साधु ने बताया था, वो अचानक ही मेरे जहन से महू हो गया था। जहन पर जोर देने के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कैसे और कौन से अल्फाज थे। मुझ पर शदीद चुंचलाहट सवार हो गई। अब करूं तो क्या करूं? उस वक्त नहर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी जो साधु से जाकर पूछता। लाचार होकर मैं वहां से उठकर वापस घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही चौंक गया, क्योंकि अप्पा जान बड़ी बेचैनी से सहन में टहल रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि अब तो वो मुझे बेइज्जत तो करेंगे ही, कुछ बैद नहीं था कि जूता उतार कर मेरी मरम्मत भी शुरू कर देते। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। अब्बा जान ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, क्या मिलता है ये सब करके रिजवान अख्तर? मैं गड़बड़ा गया। मैंने पूछा, क्या मतलब पप्पा जान? अब मतलब भी मैं ही तुम्हें बताऊं? इतनी रात को कहाँ झक मारने गए थे? उन्होंने धीमी आवाज में हुर्राते हुए पूछा। वो अप्पा जान, मेरा दम घुट रहा था तो मैं जरा बाहर चहलकदमी करने गया था, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। जानता हूँ रिजवान मियाँ, चहलकदमी करने तुम कब्रिस्तान गए थे। इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो बेहद सख्त सजा दूंगा, अप्पा जान ने गुस्से के आलम में कहा। मेरा दिल चाहा कि मैं पूछ लूं कि साधु आपके बारे में जो कह रहा था, क्या वो सच है? क्या वाकई आपके पास ताबा जन्नात है? मगर उनके गुस्से को देखते हुए मैं खामोश रहा। वो मुझे घूर कर देखते हुए पैर पटक कर कमरे से चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला आया। सुबह उठते ही अप्पा जान ने मुझे अपने साथ लिया और मस्जिद में ले आए। उन्होंने मुझसे कहा, रिजवान मियाँ, आज से तुम्हारी आवारागर्दियां बंद, तुम मस्जिद को संभालोगे
5 वक्त की अजान दोगे और मस्जिद की सफाई सुथराई करोगे। जी अब्बा जान, मैंने बुझे हुए लहजे में सर झुकाकर कहा। वो अंदर जाकर कुरान मजीद पढ़ने लगे और मैं मस्जिद की सफाई सुथराई में जुट गया। दोपहर तक का वक्त यूं ही गुजर गया। अब्बा जान दोपहर को वापस हुए तो मुझे भी साथ ले आए। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद अपने अपने कमरों में बंद हो गए। मुझे सिर्फ अब्बा जान के सोने का इंतजार था। जो ही उनकी आंख लगी मैं चुपके से बाहर को खिसक गया। मेरा रुख फिर से नहर की तरफ था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपने और अपने घर वालों के हालात बदल कर रहूंगा, फिर उसके लिए ख्वाह मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। नहर पर कल की तरह साधु आज भी धूनी रमाए बैठा था। मुझे देखते ही वो गुस्से से ताड़ने लगा। मूर्ख, जब कुछ कर नहीं सकता तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है? तुझसे सिर्फ एक जाप ही तो करने को बोला था, वो भी तुझसे ना हो पाया। मैंने शर्मिंदगी से कहा, साधु जी मैं मंत्र भूल गया था। मंत्र भूल गया था ये डरकर भाग खड़ा हुआ था। साधु ने तंज़ी अंदाज में पूछा। नहीं जी, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, बस वो मंत्र भूल गया था। आज फिर पूछने आया हूँ। आप बता दो, मैं उसे कागज पर लिखकर रख लूंगा, फिर भूल चूक नहीं होगी। साधु चंद लम्हे तक मुझे गौर से देखता रहा और फिर बोला, नहीं, अब तू वो जाप नहीं कर सकता, बल्कि अब तुझे एक और काम करना होगा। अगर तू उसमें कामयाब हो गया तो समझ ले कि तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। इतनी दौलत मिलेगी तुझे कि तेरी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगी। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा, क्या काम करना होगा मुझे? उसने अपनी मैली कुचैली धोती में हाथ डालकर एक कपड़े में लपटा हुआ गुड्डा निकाला। ये एक हाथ के बराबर लंबा पुतला था जो कपड़े से बनाया गया था। उसने वो पुतला मुझे देते हुए कहा, बालक, तुझे ये पुतला पीर शाह जलाल के मजार के ताकचे में रखना है। अगर तूने ये काम कर दिया तो तुझे दुनिया की हर वो चीज मिलेगी जिसकी तू ख्वाहिश करेगा। मैंने गोमगो के आलम में उससे पुतला ले लिया। मैं वहां से वापस आ गया और पीर शाह जलाल के मजार की तरफ चल पड़ा। वहां आज तो गहरी खामोशी नजर आ रही थी। मैंने ऊपर नजर उठा कर देखा। ये तकरीबन 20 के लगभग सीढ़ियां दिख रही थी। उसके ऊपर मजार बना हुआ था। मैंने एक बार फिर से अपनी जेब पर हाथ फेरा। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। तभी मुझे अपने पहलू में सरसराहट महसूस हुई। मैं उछल पड़ा और तेजी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं चलता ही जा रहा था मगर सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो मेरी बौखलाहट में मजीद इजाफा होने लगा था। मैंने फिर से जेब पर हाथ फेरा। अचानक ही मेरी चीख निकल गई, चलता जा बालिक, चलता जा, क्योंकि मुझे उस पुतले में से आवाज आई थी। मैंने बेइख्तियार चीखना शुरू कर दिया था और उस कपड़े के पुतले को निकालकर फेंक दिया और खुद भागता हुआ घर पहुंच गया। मैंने आइंदा इस किस्म का कोई काम करने से तौबा की और अल्लाह ताला से माफी मांगी। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे। मैं भी सब भूलने लगा था कि एक दिन एक मांगने वाली औरत घर आई। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। मैं थोड़ी देर तक तो हैरान हैरान सा उसकी तरफ देखता रहा। वो भी बड़ी लगावट से मुझे देख रही थी। अम्मा जान ने उसे आटे का शॉपर भरकर दे दिया। बाहर जाते हुए उस औरत ने नजर बचाकर मुझे इशारा किया। मैं चंद लम्हे तक तो दस-बसप में मुब्तला होकर देखता रहा कि उसकी बात सुनूं या ना सुनूं। मगर फिर जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर उसको सवालिया नजरों से देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मुझे साधु ने भेजा है। वो पूछ रहा है कि तुमने उसका काम क्यों नहीं किया। मैंने गुस्से से उसे देखकर कहा, साधु से बोल दो कि मैं ये घटिया काम अब कभी नहीं करूंगा। उसे कहना मेरा पीछा छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। क्या बात है रिजवान? अब्बा जान ने मेरी ऊंची आवाज सुनकर कमरे से निकलकर पूछा। कुछ नहीं अब्बा जान, ये औरत फजूल बकवास कर रही है, उसे जाने का कह रहा था। चल बेबी, इधर से चलती फिरती नजर आ। अब्बा जी ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। रिजवान, मैं जानता हूँ कि तुमने एक गलत रास्ते पर पांव रखने की कोशिश की थी और इस बात पर तुमसे बहुत नाराज भी था, लेकिन आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा अब्बा जी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दें अब्बा जी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पता नहीं अल्लाह ताला भी मुझे माफ करेंगे या नहीं। मैं रोते हुए उनके कदमों में गिर गया था। नहीं बेटा, तुमने जो भी किया था गलत किया था, मगर तुमने सब छोड़ भी दिया है। तौबा करने वालों को अल्लाह ताला भी माफ कर देता है।
ہم مل کر اس سادھو کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ، تم فکر مت کرو۔ ابا نے کہا تو مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ہم کیا کریں گے ابا جی؟ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا تھا۔ ہم ایک رات کا چلہ کاٹیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا، تو اس سادھو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ابا نے کہا، لیکن ابا جان مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کیسے چلہ کاٹوں گا؟ میں نے پوچھا۔ ابا جان نے کہا، تم فکر مت کرو بیٹا، تمہیں صرف آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور وہ تو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ رات ہوتے ہی ہم دونوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور نماز پڑھنے مسجد کی طرف چل پڑے تھے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ابا جی نے مسجد کے صحن میں ایک گول دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کو کہا، اور خود بھی میرے قریب بیٹھ گئے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے بیٹا، اس دائرے سے باہر مت نکلنا، ابا نے کہا۔ جی ابا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسجد کا دروازہ اکھڑ جائے گا۔ ہواؤں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ تبھی مجھے اس سادھو کی آواز سنائی دی، تو نے کیا سمجھا ہے اتنی آسانی سے میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ تیری وجہ سے میرا عمل ناکام ہوا۔ اگر تو وہ پتلا وہاں پہنچا دیتا تو تیری جان بخشی کر دیتا، مگر اب تو تجھے اور تیرے اس بھٹے باپ کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ ابا نے آنکھیں کھول دی اور مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا، تیرا باپ بھی مجھے اور میرے بیٹے کو جلا نہیں سکتا، کیونکہ تو شیطان کا پجاری ہے اور ہم رحمان کے بندے ہیں۔ تبھی ابا کے کھینچے ہوئے دائرے کے چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی اور سادھو کے کہے گونجنے لگے۔ ابا نے اپنے ہاتھ میں موجود لاٹھی کو زوردار جھٹکا دیا۔ ساری مسجد میں بھیانک چیخیں گونج اٹھی۔ وہ سادھو کی چیخیں تھیں۔ اس کا جسم آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد سناٹا سا چھا گیا۔ خاموشی ہوتے ہی آگ بھی بجھ گئی اور ہم واپس گھر پہنچ گئے۔ صبح پتہ چلا کہ وہ سادھو شیطان کا پجاری تھا اور رات کو اس کی موت بہت بھیانک ہوئی تھی۔ مجھے بعد میں ابا جان نے بتایا کہ وہ سادھو دراصل ان کا دشمن تھا۔ ماضی میں ایک بار ابا جان نے اس سے بہت سخت مقابلہ کیا تھا، جس میں سادھو کو جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ اس مقابلے میں ابا جان کے تابع جنات جو کئی پشتوں سے ہمارے خاندان کے دوست چلے آ رہے تھے، انہوں نے ابا جان کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اور وہ بوڑھے سفید ریش بابا بھی انہی جنات میں سے ایک تھے جو مجھے سادھو کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ میرے ساتھ بھی دوست بن گئے تھے، اور میں نے اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی تھی، اور انہوں نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا تھا۔ ابا جان کو ٹھنڈے دل سے سمجھانے پر وہ مجھے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دینے کے لیے مان گئے تھے۔ میں نے دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کی۔ آج میں ایک بہت اچھے عہدے پر ہوں۔ ہمارے حالات بدل چکے ہیں، اور اب ہم بھی اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، مگر آج بھی جب کبھی مجھے وہ سادھو اور اس کے ساتھ گزرا وقت یاد آتا ہے تو دل ہی دل میں بہت شرمسار ہوتا ہوں کہ آخر میں اتنا لالچی کیوں ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔